Hello students. In terpenoids, there are two terpenoids in your syllabus. First one is citral and second one is limonene. So today I am discussing citral, and we know citral is a cyclic terpenoid. ठीक है, a cyclic terpenoid, and citral is a most widely spread and industrially very important member of acyclic terpenoid, and this is the principal constituent of lemongrass. ठीक है, एंड अराउंड 60 to 80% ऑफ लेमन ग्रास इज मेड अप बाई दिस सिट्रल, एंड दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ऑयल, एंड द ऑर्डर ऑफ दिस सिट्रल इज लेमन लाइक स्मेल, लेमन लाइक ऑर्डर. And the application of this citral, this is mainly used in the preparation of beta inon, and this beta inon is mostly used in perfumery. Okay, so this is the basic skeleton of citral. This is a cyclic type of terpenoid, and there are two double bonds here and one aldehyde group, CHO group, terminal CHO group is here. Now structure determination of citral. The molecular formula determination indicate, or elemental analysis indicate that it is made up by C10H16O, or the molecular formula of citral is C10H16O. Now second, how we can know that this is a unsaturated or unsaturation is present in the compound. So on bromination, means reaction with bromine in carbon tetrachloride, it gives a tetrabromo derivative. Tetrabromo derivative, what does it mean? If one double bond is present in the compound, then for the reaction of one double bond there is a need of two bromine atoms, means Br2, and when this citral react with bromine carbon tetrachloride, it gives tetrabromo derivative. Tetrabromo derivative it indicates the presence of two double bond in citral. Second one is hydrogenation. On hydrogenation, it gives tetrahydrocitral. When citral C10H16O, this react with hydrogen in the presence of palladium catalyst, it gives a tetrahydrocitral. So from these two reactions, from bromination and hydrogenation, we can say that in citral there are two double bond present in citral. Okay, एक डबल बॉन्ड के लिए there is a need of either one Br2 और one H2. ठीक है, तो यदि दो ब्रोमीन, if it gives dibromo derivative, then we can say that only one double bond is present in citral, but the result says that it gives tetrabromo derivative. It indicates that there are two double bonds present in citral. Likewise, in the case of hydrogenation, when citral react with hydrogen in the presence of palladium catalyst, it gives a tetrahydrocitral. So it indicates that there are two double bonds. Okay. Next, because there is a oxygen present in the compound, so we should know the nature of the oxygen, whether oxygen present in the form of alcohol, as aldehyde, as ketone, or any other form like ether. So now I am discussing the nature of oxygen. Okay. So oxygen, when citral react with hydroxylamine, what is hydroxylamine? NH2OH. NH2OH, this is hydroxyl, and NH2 is amine. So this is hydroxylamine. So when citral react with this hydroxylamine, it gives monooxymes. ठीक है, so formation of oxime, this is a very important reaction of, yeah, we can say that the functional group reaction of CO group, carbonyl group. Carbonyl groups react with hydroxylamine. What is hydroxylamine? NH2OH, and this is a condensation reaction, and by the reaction of CO with NH2OH, there is a elimination of water molecule, H2O molecule eliminate from here, and there is a formation of C double bond and OH. Okay, and these compounds are known as oxymes. So likewise, the carbonyl compound, this citral also react with hydroxylamine, and it gives monooxymes. This shows that it contain a carbonyl group, CO group. ठीक है, बट CO क्या हो सकता है? दो टाइप से हो सकता है. CO may be present in the form of ketonic form, and maybe it present in the form of aldehydic form. ठीक है. So next reaction is when this citral react with toluene reagent. What is toluene reagent? Ammonical silver nitrate solution is known as toluene reagent, and in toluene reagent what react? Silver oxide, moist silver react with aldehydic group, and इट गिव्स क्या देता है आपका? सिल्वर मिरर टेस्ट. ओके, एजी का क्या बन जाता है? मिरर बनता है. सो व्हेन सिट्रल
react with the Stollen reagent, so it reduces Stollen reagent, indicate the presence of aldehyde group. ठीक है, क्योंकि कौन नहीं करता, कीटोन्स नहीं करते हैं. So it indicates the presence of CHO group in citral. Okay, and it gives xeranic acid. कौन सा एसिड बनाता है आपका, xeranic acid. And the formula of xeranic acid, we know that the formula of citral क्या था आपका, C10H16O. तो हम यदि इसमें से CHO निकाल देंगे, एक C एक H और एक बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, C9H15CHO. दिस इज citral. And on reaction with the Tollern reagent, it gives C9H5 and this CHO group is converted into COOH group and this is known as xeranic acid. ठीक है, तो this indicate that the oxygen is present in citral as a aldehyde group. Okay, so there is no other functional group test. So there are 2 double bonds present in citral and 1 CHO group present in citral. How we can say there are 2 double bonds present in citral? The reaction of citral with bromine or hydrogen, it gives tetrabromo derivative or tetrahydro derivative. It indicates that 2 double bonds are present in citral. And second one is the nature of oxygen. Oxygen present as a carbonyl group. How we can say that it's present in the form of carbonyl group? When this citral react with hydroxylamine, it gives monooximes. Or formation of monooxime indicate that there is a CO group, carbonyl group present in the compound. And then further we also analyze whether CO group present in the form of ketonic group or aldehyde group. So the reaction of citral with Tollern reagent, it gives a silver mirror test. It means it reduces Tollern reagent and it reduces Tollern reagent and gives xeranic acid. It indicates that CO is present in the form of aldehyde group, not in the form of ketonic group. Next one is presence of alpha beta unsaturated aldehyde group. Okay, तो एल्डिहाइड हमें पता चल गया, C डबल बॉन्ड C हमें पता चल गया 2 है. बट वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन वी get from UV visible spectroscopy, and in UV visible spectroscopy it gives a maxima at 235 nanometer, absorption maximum at 235 nanometer. And in UV we can know that this if a compound absorb at 235 nanometer, then there is a alpha beta unsaturated क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड ग्रुप्स. ठीक है, तो इट इंडिकेट दैट इन सिट्रल देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO. मतलब CHO को क्या होना चाहिए, CH के साथ कंजुगेशन में होना चाहिए. तो दिस इज, क्योंकि CHO के बगल वाला कार्बन दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस वन इज बीटा कार्बन. सो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट इन सिट्रल. ओके, नेक्स्ट वन इज एसाइक्लिक टर्पेनॉइड. यदि आपने इसका इंट्रोडक्टरी पोर्शन देखा है तो उसमें हमने एक बात बताई है कि क्या होता है आपका, एक जनरल फार्मूला निकाला जाता है फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. इफ द फार्मूला इज CnH2n+2 then compound is acyclic. If the formula is CnH2n, the compound is monocyclic. If the formula is CnH2n-2 then compound is bicyclic. If the formula is CnH2n-4 then compound is tricyclic and so on. So we also applied that formula in the case of citral. The formula of citral is C10H16O, but we know that there are 2 double bonds. ठीक है, तो it means this compound is unsaturated compound. So 2 double bond means if we convert this compound into the saturated hydrocarbon, then we should add 4 hydrogen for 2 double bonds. हमें 2 डबल बॉन्ड को सैचुरेट करना है तो हम क्या करेंगे, 4 हाइड्रोजन ऐड करेंगे. एंड वी ऑल्सो नो दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप. एंड इन CHO द स्ट्रक्चर ऑफ CHO इज CHO लाइक दिस वन. तो इसमें भी क्या आपका डबल बॉन्ड है, तो इसको सैचुरेट करना होगा तो यहाँ पर को क्या करना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन ऐड करना होगा और ऑक्सीजन रिमूव करना होगा. सो इट मीन्स द सैचुरेटेड जो इसका हाइड्रोकार्बन होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C10H16O + 4H + 2H. इट मीन्स 16 and 4 22 22. C10H22 इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्मूला ऑफ दिस सिट्रल. ठीक है, यदि ये है तो आप किस में फिट बैठ रहा है, दिस फिट्स ऑन CnH2n+2. ठीक है, एंड इन द introductory portion of terpenoid we already read about this one. Then if a compound's saturated hydrocarbon formula is CnH2n+2 then compound is acyclic, means 0 rings present in the compound. So likewise in citral we can assume that there is no ring present in citral. Next one is carbon skeleton. How carbon atoms are arranged in citral? For that one the reaction of citral is potassium hydrogen sulfate. ठीक है, this is a dehydrating agent and when citral react with heated with
potassium hydrogen sulfate, it gives parathymine, and this is a well known compound, and the structure of parathymine is this one. There is a benzene ring and one methyl and one isopropyl group are para to each other. Okay, so in citral, when citral heated with potassium hydrogen sulfate, it gives parathymine. So from parathymine we can analyze the structure of citral like this one, because this is parathymine, here there is a isopropyl group, here there is a methyl group. So similar structure, we can say that the citral should have the similar structure like parathymine, like 6 carbon arranged in a ring and one isopropyl group is here and one methyl is here. ठीक है. Next, the position of double bond. First we know that one double bond is alpha beta unsaturated aldehyde, means जहाँ पर CHO ग्रुप होगा उसके एक कार्बन को छोड़ के एक डबल बॉन्ड होना है. तो सेकेंड कहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, तो हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड पोजीशन के लिए देयर इज अ वेरी वेल नोन रिएक्शन फॉर द केस ऑफ एल्कीन. व्हेन वी जस्ट वांट टू नो द पोजीशन ऑफ एल्कीन, वी शुड रिएक्ट द कंपाउंड विथ ozone, means ozonolysis. Okay, so on ozonolysis citral gives 4-oxopentenyl, second one is glyoxal and third one is acetone. ठीक है, तो होता क्या है आपका, तो हमें मालूम है, देखो जहाँ पर को भी डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन डबल जहाँ पर को भी होगा, ओजोनोलिसिस पे ये कम्प्लीटली क्लीव हो जाता है और एक ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो जाती है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो जाती है. इट मीन्स क्या बन जाता है, जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है वहाँ C डबल बॉन्ड O, और जैसा भी ग्रुप्स होंगे अटैच यहाँ वैसे ही रहेंगे, और ऐसे ही ये वाला भी क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O. ठीक. तो सिमिलरली वी ऑल्सो अप्लाइड द ओजोनोलिसिस इन द केस ऑफ सिट्रल, एंड ऑन ओजोनोलिसिस इट गिव्स दीज 3 प्रोडक्ट, मीन्स 4-oxopentenyl, ग्लाइऑक्सल एंड एसीटोन. तो इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब ये है कि जो यदि ये है, देखो ऐसा है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर है आपका CHO, तो इसका ये मतलब हुआ या तो ऐसा है ये C डबल बॉन्ड OH CHO, ऐसे ही कर लेते हैं, ये दोनों में इनके बीच में डबल बॉन्ड होता होगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में. और सेकंड क्या हो सकता है, इस कार्बन और एसीटोन में. एक पॉसिबिलिटी तो ये आ जाएगी, वन पॉसिबिलिटी इज दिस वन. ठीक है, क्या कि ये वाला जो ग्लाइऑक्सल है वो इस वाले से अटैच हो और जो एसीटोन है वो इस वाले से अटैच हो. दूसरा क्या हो सकता है कि एसीटोन कहाँ से अटैच हो, इस वाले से अटैच हो, और ग्लाइऑक्सल कहाँ से अटैच हो, नीचे से. 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं. ठीक है, जो प्रोडक्ट का एनालाइज हम कर रहे हैं उससे हम सिर्फ 2 चीज़ बता सकते हैं कि जो इस वाली मॉइटी में C डबल बॉन्ड O इधर है, क्योंकि साइक्लिक है नहीं कंपाउंड, तो ये तो इसको रिंग तो क्लोज कर नहीं सकता. तो हमारे पास 2 एल्डिहाइड्स CO कार्बोनिल ग्रुप्स आए हैं, तो एक या तो इस साइड से अटैच हुआ होगा, दूसरे का दूसरे साइड से अटैच हुआ होगा, या क्या हो सकता है दूसरा वाला एसीटोन यहाँ अटैच हुआ होगा और ग्लाइऑक्सल यहाँ पर अटैच हुआ होगा. ठीक है, तो इससे हमारा जो सिट्रल है उसके 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं. ठीक है, अब सेकंड एक चीज़ और किया गया, क्या किया गया, सिट्रल का ऑक्सीडेशन किया गया अल्कलाइन KMnO4 के साथ, और फिर फॉलोड बाई किसके साथ, क्रोमिक एसिड के साथ उसका रिएक्शन किया गया, फिर से ऑक्सीडेशन किया गया. तो उससे क्या मिला, यहाँ पर देखो 4-oxopentenyl मिला था, यहाँ पर CHO किस में कन्वर्ट हो गया होगा, COH में. तो 4-oxopentenoic एसिड एसीटोन का, क्योंकि कीटोन है इसका इतना इजीली ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो ये कीटोन एसीटोन ऐसे ही रहेगा. एंड थर्ड वन इज दिस वन इज ग्लाइऑक्सल. CHO का ऑक्सीडेशन इजीली हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH में, एंड दिस CHO भी COH में कन्वर्ट हुआ होगा. तो इससे भी क्या पता चल रहा है आपका, इन दोनों बेस पे जो सिट्रल का स्केलेटन आ रहा है ये आ रहा है. ठीक है, या दूसरा पॉसिबल बनाना चाहो तो बना सकते हो. क्या बनेगा, देखो चलो बना देते हैं उसको भी. क्या बनेगा, ये बनेगा C डबल बॉन्ड C, और एक तो बनेगा ये CHO, और यहाँ पर आ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड C. ठीक, और ये आ जाएगा आपका CS3 और CS3. ये 2 स्ट्रक्चर आएंगे आपके किसके, सिट्रल के. फर्स्ट वन इज दिस वन एंड सेकेंड वन इज दिस वन. ठीक, लेकिन अब देखो हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया था, क्या करा था, जब सिट्रल को पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ हीट किया था तो क्या बना था, पैरासाइमीन. अब इसमें देखो पैरासाइमीन नहीं बन सकता है. ठीक है, इसमें क्या होगा आपका, यदि ये रिंग यहाँ से क्लोज भी हो जाती तभी भी क्या होगा आपका, पैरासाइमीन नहीं बन पाता. तो इसलिए ये स्केलेटन डिस्कार्ड कर देंगे और ये वाले स्केलेटन के लिए हम जाएंगे. तो बुक्स वगैरह में इसके बारे में डिस्कशन नहीं है, वो एक आपको पता है कि यदि ये नहीं होगा, ये वाला रिएक्शन नहीं दे रहा, तो वो सीधे बात करते हैं कि ये वाला स्केलेटन पॉसिबल है, और ये सारी रिएक्शंस को क्या करता है, देता है. ठीक है, तो लास्ट हमने क्या करा, ओजोनोलिसिस किया, और क्या करा, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ, सॉरी एल्कलाइन KMnO4 के साथ ट्रीट किया.
क्या पता करने के लिए, सी डबल बॉन्ड सी की पोजीशन पता करने के लिए। तो उससे जो स्केलेटन पता चल रहा है वो पता चल रहा है कि सिट्रल ऐसा होना चाहिए ये, क्योंकि सारी रिएक्शंस को देने में क्या हो जाएगा आपका, फेल हो जाएगा सेकेंड स्केलेटन, तो ये नहीं हो सकता, ये वाला स्केलेटन आपका सिट्रल का होगा। ठीक है। एंड फाइनली किसी भी कंपाउंड का जो हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर कंफर्म करते हैं, दैट इज फ्रॉम द सिंथेसिस। ठीक है। तो सिंथेसिस कैसे करते हैं, देखो दिस इज एसिटिलीन CS ट्रिपल बॉन्ड CH, व्हेन दिस रिएक्ट विथ सोडियम मेटल इट गिव्स मोनोसोडियम एसिटिलाइट। ठीक है। मोनोसोडियम एंड डाइसोडियम बनना है, किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ सोडियम पर। सो व्हेन एसिटिलीन रिएक्ट विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम, वन एटम ऑफ सोडियम, इट गिव्स मोनोसोडियम एसिटिलाइट। अब ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, देखो एसीटोन के साथ रिएक्शन कर रहा है, बहुत इजी रिएक्शन है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव इसके साथ, ऑर्गेनोमेटेलिक में हम पढ़ते हैं, ये इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, तो इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा। देन दिस इज H2P2 पैलेडियम और बेरियम सल्फेट है, दिस इज लिंडलार कैटलिस्ट। इन द केस ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड, कुछ नहीं हुआ, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है, दिस ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। नेक्स्ट वन इज रिएक्शन विद PBr3, तो PBr3 से क्या हुआ आपका, यहाँ ये बना और यहाँ पर को इसका क्या हो गया आपका, ब्रोमिनेशन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट वन इज रिएक्शन विद C2H5O नेगेटिव, दिस वन इज बेस, और ये क्या है, इसको हमने क्योंकि लगाना है तो हमने इस एक मॉइटी ऐसी ली है, तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, तो यहाँ से क्या करेगा, बेस क्या करेगा, प्रोटॉन निकाल देगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ से Br नेगेटिव निकल जाएगा, ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव जुड़ जाएंगे। ठीक हो, कुछ नहीं होना है। तो देखो C डबल बॉन्ड हो CS3 और ये ऐसे ही रहा COO और यहाँ से अटैच हो गया। नेक्स्ट वन इज क्या करा हमने, OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH में, गर्म करेंगे तो CO2 निकल जाएगा, इट मीन्स ये पूरा ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड हो, बाकी स्केलेटन ऐसे ही रहा। नेक्स्ट अगेन रिएक्शन विद दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कहाँ पर रिएक्शन करेगा, CO पर करेगा, कैसे करेगा, ऐसे हो जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और यहाँ से MgBr क्या हो जाएगा, Mg कैसा होगा, पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव और यहाँ से अटैच हो जाएगा, ये कुछ नहीं होना है। ठीक है। नेक्स्ट तो ये कुछ नहीं है, इसका अटैचमेंट है, और ये OH में MgBr आके OH में कन्वर्ट, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज फिर से लिंडलार कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। एंड फाइनली किसके साथ रिएक्शन करते हैं, एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन करते हैं, तो जो ये ग्रुप है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसको क्या करोगे, जब टॉटोमराइज करोगे तो किस में कन्वर्ट हो गया आपका, CHO में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या है आपका सिंथेसिस ऑफ सिट्रल। तो फ्रॉम फाइनली द स्ट्रक्चर ऑफ सिट्रल इज कन्फर्म फ्रॉम द सिंथेसिस ऑफ सिट्रल।